حضرات گرامی آج کے جمعہ مبارک اجتماع میں انشاءاللہ سورہ توبہ سے آغاز ہو رہا ہے اور گزشتہ سورت میں جس مضمون کا اختتام ہوا تھا، یعنی داخلی سلطنت کے اسلامی سلطنت کے داخلی معاملات اور ان کے اصول بیان کیے گئے تھے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں خارجی تعلقات، یعنی اسلامی سلطنت کے خارجی تعلقات یا بیرونی ممالک کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم ہونے ہیں، اس کا بیان ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر بڑے خوبصورت مضامین رکھتی ہے۔ اس میں عشق و محبت رسول کے ایسے سوتے پھوٹتے ہیں، ایسے دریا بہتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جانبداریوں کے ایسے معاملات اور واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو سننے کے بعد انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا دنیا میں بھی کوئی ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت کیا۔ دوستان گرامی، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے وہاں پر قیام ہوا اور اسلام پھیلنے لگا، ہر روز اسلام کی تعلیمات، اسلام کا علم، اسلام کے معاملات اور احکامات جب لوگوں تک پہنچنے لگے تو پھر کیا ہوا، حضور علیہ السلام کے لوگ بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کرنے لگے اور یوں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا۔ میں آپ سے یہی کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آ جاتا تھا وہ واپس پلٹ کے نہیں جاتا، اور اسلام بتدریج آہستہ آہستہ اپنی حدود کو وسیع کرتا ہے۔ اسلامی سلطنت رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہجوم یکدم کبھی بھی مسلمانوں کے گرد اکٹھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال کی جد و جہد، 10 سال کوئی کم نہیں ہے نبی کے لیے۔ نبی کا مقام بہت بڑا ہے، نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، نبی کا فیض بہت بڑا ہے، نبی کی نگاہ سے نکلنے والی چیز کبھی خطا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں صرف 40 افراد اسلام لائے، 40 افراد اسلام لائے۔ لیکن جس وقت میرے آقا و مولا مدینہ پاک میں تشریف لے گئے پھر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، پھر قبیلوں کے قبیلے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ دوستوں اور بزرگوں، جس وقت مسلمان ہمیشہ یاد رکھیں اپنے اصولوں پر چلتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں، ان کے خلاف جنگیں بھی ہوتی ہیں، ان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، ان کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ اختلافات بھی کیے جاتے ہیں،
यही सूरत हाल मेरे आका को दरपेश है। सरकार जिस वक्त तशरीफ फरमा हुई है मदीना पाक में, उस वक्त इर्द गिर्द की सल्तनतों को एक खतरा पैदा हो गया कि ये इस्लाम तो बढ़ता चला है। उसकी वजह यह है कि जब नजरिया किसी कौम के अंदर, नजरिया किसी फर्द के अंदर दाखिल हो जाता है, ये फिर नजरिया निकलता नहीं है। हुकूमतें जबरदस्ती की साथ मिलाए हुए लोग, जबरदस्ती के साथ जेर किए हुए लोग, जब भी मौका मिलता है वो वापस पलट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, सल्तनतों से निकल जाते हैं, वो इताअत कबूल करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन नजरिए के साथ आपके साथ बढ़ने वाले लोग, नजरिए के साथ आपके साथ जुड़ने वाले लोग कभी भी अलग नहीं होते। फिर वो वापस पलट के नहीं जाते, वो कश्तियां जला के आते हैं। जो नजरियाती लोग होते हैं वो अपनी कश्तियां जला देते हैं, वो वापस पलटने का फिर सोचते भी नहीं। यही बात थी कि मेरे आका और मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाता था, वो कभी टूटता नहीं था। वो नजरिया लेकर के अपने नजरिए को अपने अंदर लेके आता था। उस नजरिए की वजह से, इस्लामी नजरिए की वजह से यूं लोग फैलते गए, इस्लाम फैलता गया, सरकार के गुलामों की तादाद में इजाफा होता गया, बड़ी बड़ी सल्तनतों के पसीने छूट गए और उनके जरा थर थर कांपने लगे कि अब हमारा क्या हाल है। इस दौरान में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में मौजूद थे और आप वहाँ पे तशरीफ फरमा थे और एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी जा रही थी, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त एक तरफ सल्तनत फारिस थी जो ईरान, अजरबैजान और इस तरह के दूसरे इलाकों, तुर्की तक फैली हुई, इस तरह के इलाके लोगों इस तक फैली हुई थी। और जबकि जो दूसरी तरफ सल्तनत रूम थी, सल्तनत रूम जो थी, रूम की जो बादशाह थी, जो कैसरे रूम के ज़ेरे नगीन थी बादशाह, वो कम अज कम 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर की सल्तनत वो फैली हुई थी। और ये 27 कबल मसीह से इसका आगाज हुआ था। उसका नाम था अगस्टस सीरियस, उसने इसकी सल्तनत रूम की बुनियाद रखी थी। और ये फैलते फैलते इसके अंदर जो ममालिक थे वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिस्तान, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, टर्की, मिस्र, इतनी बड़ी सल्तनत। यूरोप भी उसके अंदर शामिल था, तकरीबन निसफ अफ्रीका भी शामिल था। तुर्की तक की ये सल्तनत फैली हुई थी, तुर्की तक ये सल्तनत, रूम, कैसर रूम की सल्तनत फैली हुई थी। उस वक्त जो बादशाह था उसको कैसर कहलाता। इस तरह सल्तनत फारिस भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मौजूदा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान के इलाकों तक ये सल्तनत फारिस फैली हुई। आप जरा तस्वर करें, नक्शा देखिए, काश हमारे पास प्रोजेक्टर होता और वो ज़हीर साहब जिंदा होते तो हम आपको इधर प्रोजेक्टर पे नक्शा बना दें, क्योंकि वो इसके माहिर थे। तो आप जरा नक्शा उठा के देखें, इतनी बड़ी सल्तनतों के दरमियान इस्लाम की छोटी सी सल्तनत कायम हुई। लेकिन इस छोटी सी सल्तनत ने, जो एक नजरिया की बुनियाद पर कायम हुई थी, इसने बड़ी बड़ी सल्तनतों के पसीने छुपा, थर थर कांपने लगे। और उन लोगों ने, खास तौर पे सल्तनत रूम का जो बादशाह था, उसने मुसलमानों पर हमला करने के लिए अपने जो ज़ेरे नगीन गवर्नर थे, जो शाम और इधर तुर्की के इलाकों के साथ साथ जुड़े हुए थे, उनको हुक्म दिया कि मुसलमानों पर हमले की तैयारी की जाए। इधर हमारे आका और मौला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि सल्तनत रूम का जो बादशाह है, उसने अपने गवर्नरों को और अपनी जो करीब की रियासतें हैं उनको हुक्म दिया है कि वो मुसलमानों पर हमले की तैयारी की। सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पेशतर कि रूम की सल्तनत ताकत पकड़ जाए, हम इब्तदा में ही उनको ऐसा नुकसान पहुंचाएं या उन पर धाक बिठा दें ताकि उनके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाए। जो खौफ है डर, ये भी बड़ी बारिश है। बंदे को बंदा डरे है, बंदे को बंदा डरे, ओ मैं मर जाऊंगा, ओ मैं तू एक दिन मर तो जाएगा, ओ कदर तक मरे तो बचेगा, एक दिन मारी जाना। तो शेरा वांगण मार तो पता लगे कि दुनिया से कोई आया सी चला गया। बुज़दिलां दी भी कोई मौत होती है, बुज़दिलां दी कोई मौत नहीं होती, शेरां दी मौत होती है। अल्लाह ताला दे शेरां दी मौत होती है, दुनिया देखती है कि ऐ शेर दुनिया की मौत। दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत अमली अपनाई और आपने ऐलान फरमा दिया कि जंग की तैयारी की जाए। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की तरफ जाने का इरादा फरमाया। इसको ग़ज़वा तबूक भी कहते हैं और इसको ग़ज़वा उसरत भी कहते हैं, और ये शदीद गर्मियों के दिनों में ये इसकी तैयारी है। इसके वाक़यात हैं बड़े खूबसूरत, इश्क मोहब्बत के वाक़यात हैं, कुर्बानी के वाक़यात हैं। यही वो तैयारी थी, इसी जंग की तैयारी थी जिसमें सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान ले आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ग़ज़वा पर तशरीफ ले गए और तबूक के मकाम पर, तबूक जो है ये शाम और बसरा के दरमियान एक जगह है, एक मकाम का नाम है तबूक। वहां तक जब आप तशरीफ ले गए तो उससे आगे रूम की सल्तनत थी, तो रूम की जो सल्तनत के जो आगे जो गवर्नर वगैरह थे, उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ऐलान कर बगैर जंग किए, बगैर लड़े हुए उन्होंने कहा जी कि हम आपकी इताअत करते हैं, आप जिस तरह हुक्म देंगे हम उसको कबूल करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से निकले थे, जब हिजरत की थी, तो आप 3 अफराद पर मुश्तमिल आपका काफिला था। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम आमिर बिन फ़ुहैर, ये 3 अफराद पर मुश्तमिल काफिला मक्का मुकरमा से निकल के मदीना आया था। और आज जब हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 9 हिजरी का तकरीबन 8 हिजरी का वाक़या है, 8 हिजरी में ये तकरीबन जंग हुई थी, 9 हिजरी ना 8 हिजरी को, ये 8 और 9 हिजरी के दरमियान ये जंग हुई थी। इस ग़ज़वा के लिए इस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30,000 अफराद, 3,000 मुजाहिदीन अपने सर थैलियों पर रख के सरकार के हुक्म की ताबे फरमानी करते हुए मैदान जंग में हाजिर हो गए। कौन इस हस्ती की ताब ला सकता है, कौन मुकाबला कर सकता है? मेरे सरकार तन्हा ही काफी है लाखों के लश्कर के, मेरे सरकार तन्हा काफी है हजारों लाखों के लश्कर के सामने, एक मोहम्मद मुस्तफा काफी है। फिर जब मुस्तफा के 30,000 गुलाम साथ हो जो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए आए हो, जो अपने इज्जतों को, अपनी इज्जत और आबरू को लुटा के आए हो, जो अपना सामान, अपना घर बार, अपने बच्चों को छोड़ के अपने जान कुर्बान करने के लिए सरकार के साथ आए हो, उनको कौन शिकस्त दे सकता है? उनको कोई शिकस्त दे सकता है? कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये मेरे सरकार की शान है, मेरे सरकार की शान बुलंद है। दोस्तों और बुजुर्गों, 30,000 का लश्कर जब रवाना हुआ और वहां से वापस आए तो फिर क्या हुआ? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वापसी पर हज का इरादा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज का इरादा किया कि मैं हज को जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज पर तशरीफ ले जाएंगे
और वहां पर मुशरिकीन भी होंगे, मुशरिकीन मक्का होंगे, इर्द गिर्द के मुशरिकीन भी होंगे, और वो उनका रिवाज ये है, कि वो नंगे होकर के, नंगे बदन काबा का तवाफ करते हैं। उनका रिवाज ये है कि वो नंगे होकर, सरेआम नंगे होकर के वो काबा का तवाफ करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो तलबी जो है उसके अंदर शिरकी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये मंजर कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप तो हया वाले हैं, आप तो हयाओं को तकसीम करने वाले हैं। आप तो हयाओं को तकसीम करने वाले हैं। आप किस तरह इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि आपके सामने कोई नंगे होकर के तवाफ करे या कोई शिरकी अल्फाज कहे और आप उसको रोके भी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात पे गौर फरमाया तो आपने फरमाया, ठीक है, इस मर्तबा हम नहीं जाते, हज के लिए हम नहीं जाते। अब हुआ क्या, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के, अपना नाइब बना के, लोगों को मनासिक हज सिखाने के लिए हज का अमीर बना के भेज दिया, हज का अमीर बना के भेज दिया। अब इसका मतलब है कि और भी सहाबा वहां पे मौजूद थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अपनी नियाबत की जो इंतखाब था वो सैयदना सिद्दीक अकबर का था। हुजूर ने इशारा फरमा दिया, और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात पाक से ये पहला, आपकी हयात पाक से ये पहला हज था जो अमीर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ेरे क़यादत हुआ। उसके बाद वाला जो हज 10 हिजरी में हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हुआ था, और वो आखिरी हज था। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ही बता दिया था, इस इमारत को, इस हज की इमारत को बना के हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के बता दिया था कि मेरे बाद अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको अमीर हज बना के भेजा और आपको सूरह बरात की आयात, जो सूरह बरात या सूरह तौबा है, इसकी आयात बयान करने के लिए फरमाया कि आप जाके ये हज के मौका पर इसको बयान करें, सुनाएं। लेकिन उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आपके पीछे भेजा कि आप जाके सूरह बरात की आयात और मुशरिकीन से, दूसरे लोगों से मुआहदा खत्म करने का ऐलान है। इसकी वजूहात में इंशाअल्लाह मौका पर बयान करूंगा। सूरह बरात के में अल्लाह ताला ने इसकी इब्तिदा की, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बरात है, उनसे अलहदगी है, ऐलान बरात है उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया। उनकी तरफ से मुआहदा का जो मुआहदा किया गया है उनसे ऐलान बरात है, उन मुशरिकीन से ऐलान बरात है जिनसे तुमने मुआहदा किया था। किसकी तरफ से? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बरात है। आज के बाद यानी उस ऐलान के बाद फिर मुशरिकीन मक्का या दूसरे मुशरिकीन के साथ जो मुआहदा था और या दीगर मुआहदे थे वो खत्म हो गए, उनको खत्म करने का ऐलान है। फसीहू फिल अर्ज़ अर्बअत अशहुरिन, अब उस मुआहदे की मनसूखी का भी ये आलम था कि फौरन हर चीज खत्म नहीं कर दी गई। देखो सरकार की शान, हजूर की शान देखो कि ये वो हस्ती हैं जो माफ फरमाने वाले हैं, जो मौका देने वाले हैं कि आए लोगों, अभी भी आपको मौका दिया जाता है कि आओ वापस पलट के हमारी तरफ आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने
اللہ تعالیٰ और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बरात हुआ, लेकिन इस शर्त के साथ कि फसीहु फिल अर्द अर्बअत अशहुरिन, फसीहु फिल अर्द अर्बअत अशहुरिन, कि 4 महीने तक जिधर चाहे फिरते रहो, सोते रहो, आते रहो, जाते रहो, तुम्हें कोई किसी को कुछ नहीं कहा जाए। सरकार इस बात का भी ऐलान कर सकते थे कि आज के बाद, अब इस दिन के बाद कोई मुशरिक मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकता, कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता, कोई मुशरिक उम्रा नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, 4 महीनों की मोहलत हो। ये मोहलत देना मेरी सरकार की सुन्नत है, ये मेरे सरकार की सुन्नत है किसी को छोड़ देना, कि चलो यार छोड़ो, काम करो अपना, 4 महीने तक इधर उधर मुंह मारो, इधर उधर फिरते रहो, जब तुम्हें और कोई आसरा नजर नहीं आए, जब तुम्हें कोई और सहारा नजर ना आए, जब तुम्हें कोई और चीज दिखाई न दे, जब तुम्हारा कोई और मावा मलजा ना मिले, तो फिर मेरी बारगाह में आ जाना, मैं फिर तुम्हें गले से लगा दूंगा। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया 4 महीनों तक घूमते फिरते रहो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वालमू अन्नकुम गैरु मौजिज़िल्लाह, लेकिन ये बात भी याद रखो, वालमू जान लो, चलो फिरो, 4 महीने तुम्हें अयाशी की इजाजत है, जो मर्जी चाहो करो, लेकिन वालमू जान लो कि अन्नकुम गैरु मौजिज़िल्लाह, कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के ऊपर तुम गलबा नहीं पा सकते, अल्लाह के महबूब के ऊपर तुम गलबा नहीं पा सकते। तुम जितनी मर्जी इन 4 महीनों के अंदर साजिशें कर लो, लेकिन गालिब अल्लाह और उसके रसूल नहीं होंगे। अब कोई ऐसा है दुनिया में, कोई ऐसा बादशाह है जो जिस पर गलबा पाने के बाद उनसे कहे कि अभी तुम्हें मोहलत है, जाओ घूमो फिरो, जो करना है कर लो, लेकिन साथ याद रखना कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को आजिज नहीं कर सकते। अल्लाह गालिब है, कुल है, अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वअन्नल्लाह मुख़ज़िल काफिरीन, और बेशक ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है, हुजूर के दुश्मनों को अल्लाह ताला हमेशा रुसवा करने वाला है। 4 दिन की जिंदगी में उनको अयाशी नजर आती है, खुला डोला काम नजर आता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम बहुत आजाद हो गए। नहीं, अल्लाह ताला उनको घेरता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको अपने घेरे में ले लेता है, फिर अल्लाह ताला उनको रुसवाए जमाना बना देता है, फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर, आप देखो जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने भी दुश्मन हुए हैं, जितने हजारों दुश्मन, हर किसी दुश्मन का नाम इस वक्त अच्छे अंदाज में नहीं लिया जाता है, वो रुसवा कर दिए गए, उनको जलील कर दिया जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ में। याद रखें। अब यहाँ पर एक चीज है कि इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, इसके और बाकी तमाम सूरतों की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखा गया है, इस सूरह मुबारका में नहीं लिखा गया। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? ये क्यों नहीं लिखेगी? इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान की जाती है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पाक लिखी है कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कुल तो ले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कि मैंने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा। याद रखें, ये कुरान के जामे जो है हजरत उस्मान गनी, ये मेरे रब ताला की कितनी अजीम शान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को हुजूर के और हुजूर के गुलामों के सामने आजिज कर दिया है, ताबे फरमान कर दिया है, और उनके सामने सर उठाने की जरूरत नहीं। आप देखो, अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कुरान मजीद को जमा करा के मानने वालों को और न मानने वालों को हजरत उस्मान गनी के इस कुरान मजीद का मोहताज बना दिया। वो लोग जो हजरत उस्मान गनी को गालियां देते हैं, वो लोग जो हजरत उस्मान गनी को गासिब समझते हैं,
وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا واجب سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی حضرت عثمان کے جمع کیے ہوئے قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ان لوگوں کو بھی یہی قرآن پڑھنا پڑتا ہے جو عثمان غنی نے جمع کیا۔ درود پڑھے۔ ہے کہ نہیں بات کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ جو دو تختیوں کے درمیان ہے، جو دفتین کے درمیان ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی ابتدا جمع کرنے کی ابو بکر صدیق نے کی۔ پھر یہ لکھا ہوا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، جس کو حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھا گیا، جو کون تھی؟ جو حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھی اور ہماری ام المومنین ہے۔ ان کے پاس اس مصحف کو رکھا گیا، اسے مصحف حفصہ بھی کہتے ہیں، اس مصحف کو رکھا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو تھا مصحف وہ الگ الگ حصوں میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور خلافت میں اس کو جمع کیا اور ایک جگہ پہ اس کو جمع کر کے ترتیب کے ساتھ اس کو لگایا اور اس کی پھر کاپیاں کر کے مختلف علاقوں تک پھیلا دی۔ پھر اس کے علاوہ جس کے پاس انفرادی طور پر قرآن مجید کا کوئی حصہ لکھا ہوا تھا اس کو لے کر کے اس کو ملایا گیا، اور جو چیزیں اس قرآن مجید کے جو حضرت عثمان غنی کے پاس تھا، جو حضرت عثمان غنی کو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تھا، اس قرآن مجید کے ساتھ ملا کے باقی تمام چیزوں کو طلب کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا تھا وہ آج بھی آپ کے پاس ہے۔ اس کو شیعہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو سنی بھی پڑھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسی قرآن مجید کو پڑھنے پر مرزائی بھی مجبور ہے، قادیانی بھی اسی کو پڑھتے ہیں، حالانکہ قادیانی دشمن ہے اسلام، لیکن وہ مجبور ہے اسی قرآن مجید کو پڑھنے۔ جو بھی انکاری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھکا دیا ہے در عثمان غنی پر۔ اب اندر سے بے شک کوئی انکار کرتا رہے کہ یہ جو قرآن تحریف شدہ ہے، یہ قرآن ظاہری طور پر علیہ اعلان کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تحریف شدہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے جمع کی۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ما حملکم ان عمدتم الی الانفال، کہ جب آپ نے سورہ انفال کو جمع کیا، وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْمَعِينِ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، کہ جو سورہ انفال ہے وہ لمبی صورت ہے اور جو سورہ توبہ ہے یہ درمیانی ہے، آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهَا فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، آپ نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، یعنی سورہ انفال ختم ہوئی اور سورہ برات شروع ہوئی، لیکن ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ وَوَضَعْتُمُوهَا، اور آپ نے اس کو پھر سب طوال اور اس کو آپ نے طوال میں رکھ دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مما یعطی علیہ الزمان وهو ينزل علیہ السور ذوات العدد، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو آپ کی حیات پاک میں متعدد صورتیں نازل ہوئی، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْدَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ، تو جس وقت بھی کوئی آیت
کوئی सूरत नाजिल होती, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को बुलाते, फयकूल दऊ हाजिल आयात फिर सूरत लती युज़करु फीहा कज़ा व कज़ा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी सहाबी को बुलाते, लिखने वाले को, और उनसे कहते कि ये जो सूरत है या ये जो आयत है फलां सूरत के फलां मकाम पर लिख दी जाती। अभी गौरव फिक्र से सुने, फिर मैं आपको इसका नतीजा बताता हूं। फैज़ा नज़लत अलैहि आयत फयकूलु दऊ हाज़ि फी सूरत लती युज़करु फीहा कज़ा व कज़ा, जब सूरत नाजिल होती तो आप फरमाते इस सूरत को फलां सूरत के बाद लिख दो, फलां सूरत से पहले लिख दो। जब कोई आयत नाजिल होती तो आप फरमाते कि इस आयत को फलां सूरत की फलां मकाम पर इस आयत को लिख दो। वकानत अल-अनफाल मिन अव्वल मा नज़ल बिल मदीनते, और जब सूरत अनफाल नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा में, वकानत बराअतुम मिन आखिरिल कुरान, और सूरह बरात जो है ये आखिरी सूरत है जो कुरान मजीद में एक सूरत के हिसाब से जो नाजिल हुई, आखिरी सूरत है। वकानत किस्सतुहा शबीहतन बिकिस्सतिहा, और इसके जो मज़ामीन हैं वो सूरह अनफाल के साथ मिलते जुलते हैं। वह हसिब तो अन्नहा मिनहा, और हमने गुमान किया कि ये उसी सूरत का हिस्सा है। वक़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर अलैहिस्सलाम के इसी दौरान में विसाल हो गया। वलम युबय्यिन लना अन्नहा मिनहा, और हम पर ये बात वाज़ेह न हो सकी कि ये उस सूरत में से है या अलग सूरत है। फमिन अजल ज़ालिका करंतु बैनहुमा, फिर हमने उसको उस सूरह अनफाल के साथ मिला दिया। वलम अक्तुब बैनहुमा सत्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर हमने उनके दरमियान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम न लिखी, सूरह अलग लिख दी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम न लिखी, क्योंकि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से ये मालूम न हो सका था कि ये अलग सूरत है या सूरह अनफाल का हिस्सा है। ये है एहतियात, ये कुरान मजीद के हक होने पर सबूत है, ये सहाबा के अदल होने पर सबूत है, ये सहाबा के जानतदार होने पर सबूत है कि जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम को कोई बात वाज़े तौर पर मालूम न हो सकी, उन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज कुरान मजीद में दाखिल न की। इससे साबित हुआ कि कुरान मजीद हक है और कुरान मजीद में कोई तारीफ नहीं है। इसी से साबित होती है कि कुरान मजीद में कोई तारीफ नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखने में इतनी एहतियात बरती जा रही है कि रसूलुल्लाह से मालूम नहीं हुआ कि ये अलग सूरत है या सूरत अनफाल का हिस्सा है, तो फिर उसको अलग करके लिखा, लेकिन दरमियान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखा। ये एहतियात है सहाबा कराम की। इससे बढ़कर जानकारी सहाबा कराम की और किस चीज में ढूंढते हो। हजरत उस्मान गनी, दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जामे अल कुरान है, उन्होंने इस सूरत मुबारका के बारे में ये बयान दिया, तो इससे साबित हुआ कि जो है ये इस तरह कुरान मजीद हक है, कुरान मजीद में एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं है। अब दूसरी जो सूरत हाल है कि दूसरा सवाल पैदा होता है कि पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक से वापसी पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अमीर हज बना के भेजा और इरशाद फरमाया कि जा करके बरात का ऐलान करें, जब हज का खुतबा दें तो ऐलान बरात करें। लेकिन पीछे हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि आप जाके सूरह तौबा की इन आयात का बरात का ऐलान करें। अब जो शिया हजरात हैं वो इस मामला से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फजीलत को जाहिर करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले रवाना हो गए, बाद में हजरत अली उल मुर्तज़ा को भेजा गया कि आप जाके ऐलान बरात करें। लिहाजा इससे साबित हुआ कि हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम
अफजल हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से। ये शिया का मुकदमा है, ये इस चीज को बयान करते हैं इस सूरह मुबारक की इस आयत में। लेकिन मैं इंशाअल्लाह आपके सामने हकायक बयान रखूंगा। इस पर शिया आलम जो है उसने ये दलील दी है, अबू मंसूर अहमद बिन अली बिन अबी तालिब तबरसी, उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तिकाक खिलाफत यानी खिलाफत के हक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के सामने अपनी तरजीह के वजूद बयान करते हुए फरमाया, हजरत अली ने, ये शिया आलम अल-इहतिजाज तबरसी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है, तबरसी ने लिखी है, अबू मंसूर तबरसी ने, उसमें इसने ये वाक़या लिखा है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कहा गया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, यानी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, ये उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई बात है, हकीकत में आपके सामने रखूंगा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि ये बताओ कि हज के मौसम में मजमे अजीम के सामने सूरह बरात का ऐलान करने वाला मैं था या तुम थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम थे। फिर तमाम वजूह बयान करने के बाद हजरत अली ने फरमाया, इन दलाइल की वजह से तुम उम्मत मुहम्मदी की इमारत के मुस्तहिक होते हो, यानी क्या तुम इमारत के मुस्तहिक होते हो? इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहा कि अबुल हसन तुमने सच कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दो ताकि मैं इस पर गौर करूं। अब ये अल-इहतिजाज तबरसी में उस मुसन्निफ ने जो शिया उसने ये रिवायत लिखी। इस वाक़या को अहले सुन्नत व जमात की कुतुब हदीस में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया। मैं एक हदीस बयान करता हूँ, बस आखिरी में बयान करके फिर छोड़ूंगा, और इंशाल्लाह ये वाक़यात चलते रहेंगे, आइंदा भी ये मजमून चलते रहेंगे। फरमाया व अव्वल हाज़िहि सूरतिल करीमति नज़ल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इब्तिदा में ये सूरत मुबारका जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, लम्मा रजा मिन ग़ज़वत तबूक, जिस वक्त के आप ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, वहम्म बिल हज, और आपने हज का इरादा फरमाया था, सुम्मा ज़ुकिरा अन्नल मुशरिकीना यहदुरून आमहुम हाज़ल मौसम, कि जब आपसे कहा गया, आपसे अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज के मौसम में, इस हज के मौका पर मुशरिकीन भी वहां पे मौजूद होंगे, अला आदतिहिम फी ज़ालिका, और वो अपनी उस पुराने तौर तरीके पर होंगे, व अन्नहुम यतूफूना बिल बैत क़ुरातन, और मुशरिकीन जो हैं वो नंगे होकर के तवाफ करते हैं काबा मुअज़्ज़मा का, फ़करिहा मुखालततहुम, और आप उनके साथ मिल करके तवाफ करने को नापसंद फरमाएंगे। हुजूर हया वाले हैं, वो इस बेहयाई के मकाम पर कैसे जा सकते हैं? सहाबा कराम को मालूम है कि हमारे आका और मौला इतनी हया वाले हैं कि वो सतर खोलने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सतर खोलने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहाँ सरेआम नंगा होना, ये सरकार से बर्दाश्त नहीं होगा। अर्ज कीजिए या रसूलल्लाह, वो नंगे होकर तवाफ करते हैं, आप इस चीज को नापसंद करेंगे, आप किराहत महसूस करेंगे, आप तशरीफ न लेके जाएं। फबासा अबू बकर सिद्दीक, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तजवीज को पसंद करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मकाम, अपना कायम मकाम बनाया और अमीर हज बनाया। अमीरन अलल हज हाज़िह सनता, इस साल के लिए, इस मौसम हज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के भेजा, लियुकीमा लिन्नास मनासिकहुम, ताकि हजरत अबू बकर सिद्दीक अहले ईमान को मनासिक हज सिखाएं। ये क्या है? ये कार नबूवत है, मनासिक हज सिखाना, मनासिक हज सिखाना कार नबूवत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक हज को नहीं गए थे, इससे पहले
रसूलुल्लाह ने हज नहीं किया था कि अहले ईमान को मनासिक हज अपने प्रैक्टिकल करके बताते। हजरत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक पर इतना एतमाद था कि जो अबू बकर सिद्दीक करेंगे वो मेरा किया हुआ होगा। इसी वजह से तो अपने से पहले बना के भेजा, अमीर हज बना के भेजा, ताकि जाओ अबू बकर सिद्दीक जो तुम्हारा किया होगा वो मेरा किया होगा। लोगों को बताओ हज किस तरह किया जाना है। अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने हज का बताया था, हज करके सिखाया था कि अबू बकर सिद्दीक इस तरह इस मकाम पर ऐसे हज करना है, इस पर ऐसे खड़ा होना है, इस पर ऐसे चलना है, इधर जाना है, इधर आना है। सरकार ने तो नहीं बताया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक सरकार के तरबियत याफ्ता थे, उनको मालूम था कि सरकार ने किस वक्त क्या क्या करना है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के भेजा कि लोगों को हज का तरीका सिखाएं, ताकि उसके बाद जब मैं हज करने आऊं तो लोग सीखे हुए हों, लोग तरबियत याफ्ता हों। जब लोग मेरे पीछे चले तो तरबियत याफ्ता करो मेरे पीछे। ये वजह है सरकार के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम व मर्तबा है। फरमाया वयुअलिमल मुशरिकीन अल्लाह यहुज्जु बअद आमिहिम हाज़ा, और मुशरिकों को बता दो कि इसके बाद तुमने हज नहीं करने आना। वयुनादिया फिन्नास बिबरातन, और लोगों के सामने बरात का ऐलान फरमा दे। फलम्मा कफला अत्तबिहु बिअली इब्न अबी तालिब, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक काफी आगे बढ़ गए तो पीछे हजरत अली और मुर्तजा को भेजा। फलम्मा कफला अत्तबिहु बिअली इब्न अबी तालिब लियकून मुबल्लिगन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकौनिही अस्बतु लहू। उसके पीछे हजरत अली और मुर्तजा को सूरह बरात की आयात का ऐलान करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए भेजा कि क्योंकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे, और उस वक्त दस्तूर ये था, उस जमाने का रिवाज ये था कि जब किसी बंदे के मुआहदे को तोड़ना होता था तो वो बंदा अपनी असल के साथ अपने आप बनफ्से नफीस वहां आकर उस मुआहदे को तोड़े, या उसका चचा हो या उसका भतीजा हो या उसका भाई हो, वो आके उस मुआहदे को तोड़ने का ऐलान करे तो फिर उसको मुआहदे को टूटा हुआ तस्वुर किया जाता था। उस दस्तूर को कायम करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे हजरत अली और मुर्तजा को भेजा गया, क्योंकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। अब मुआहदे के तोड़ने के ऐलान उस जमाने के दस्तूर के लिहाज से, उस जमाने के कानून के लिहाज से सिर्फ मुआहदा उस सूरत में टूटा हुआ तस्वुर किया जा सकता था जब नबी करीम अलैहिस्सलाम बजाते खुद तशरीफ ले जाके वहाँ ऐलान फरमाते कि आज के बाद भाई हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, या रसूलुल्लाह के चचा वहाँ पे तशरीफ ले जाते वो ऐलान करते कि हमारा नहीं है, या हुजूर के सगे रिश्तेदारों में से कोई बंदा जाके ऐलान करता। और उस वक्त मौजूद हजरत अली और मुर्तजा जो रसूलुल्लाह के दामाद भी हैं, जो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी हैं, जो रसूलुल्लाह के साथ ईमान लाने वालों में से हैं, वो सबसे उनमें रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों में उस वक्त मौजूद हजरत अली और मुर्तजा थे। हजरत अली और मुर्तजा को पीछे भेजा ताकि तुम जाके मुआहदों को तोड़ने का ऐलान करें। दोस्तों फिर क्या हुआ? फिर वो वाकया ये हुआ कि जब हजरत अली और मुर्तजा काफिले के साथ जब पीछे पहुंचे तो एक मकाम पर जाके जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि यहाँ पर एक ऊँटनी की आवाज आ रही है, और वो ऊँटनी क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है अदबा। उसकी आवाज सुन के पहचान लिया अबू बकर सिद्दीक ने कि ये ऊँटनी की आवाज मेरे मुस्तफा की ऊँटनी की आवाज है। कितना अपने कल्ब मिले हुए थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक एक चीज को आप पहचान लेते थे। इतना बड़ा हुजूम है, हजारों इंसान आपके ज़ेरे क़यादत हज के काफले के लिए रवाना हुए हैं। अब उसमें जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे से आके मिलते हैं, आप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं देखते, आप
ऊँटनी की आवाज वो जो आवाज थी, वो जो बड़बड़ाती है ना ऊँटनी, उस आवाज से पहचान लिया कि ये तो ऊँटनी मेरे महबूब की है। आपने समझा कि हो सकता है रसूलुल्लाह पीछे आ गए। आपने पूछा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की आवाज आ रही है, क्या रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए? उनको बताया गया कि हजरत अली और मुर्तज़ा तशरीफ लाए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ ले गए और फरमाया या फलम्मा राउ अबू बकर, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली और मुर्तज़ा से मिले, आमने सामने हुए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा अमीरुन औ मामूरुन, अदब का मकाम देखो, रसूलुल्लाह के सहाबी रसूल के अदब का मकाम देखो। आपने पूछा कि आप अमीर बना के भेजे गए हैं या कि आप हुक्म की तामील करने वाले मामूर बना के भेजे गए हैं? अगर आप अमीर बना के भेजे गए हैं तो मैं सरे तस्लीम कम कर दूं, और अगर मामूर बना के भेजे गए हैं तो फिर मेरे पीछे पीछे चले। ये है अदब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब तरीन आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल, उनके अंदर भी ये तलब थी, ये ख्वाहिश थी कि मेरे सरकार ने जो हुक्म फरमाया है अबू बकर सिद्दीक पर लाजिम है कि उस हुक्म को कबूल करें। आपने पूछा अमीरुन और मामूरुन, आप अमीर बना के भेजे गए हैं या मामूर बना के भेजे? काला बल मामूरुन, हजरत अली ने फरमाया मैं हुक्म की तामील करने वाला बना के भेजा। हजरत अली ने फरमाया मैं मामूर बना के भेजा गया हूँ, अमीर बना के नहीं भेजा गया हूँ। सुम्मा मदया, फिर आप चले, फ़अक़ाम अबू बकर लिन्नास, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़अक़ाम अबू बकर लिन्नास हज, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को हज पढ़ाया। अब अगली आयत, अगले बात जो है कि फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया मैदान अरफात में, और अली और मुर्तज़ा ने क्या किया, इंशाअल्लाह अगले जुमे पर बयान होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।